now we go to the other book, which is Breaking the Habit of Being Yourself. और उसमें बड़ा powerful सा chapter हम कर रहे हैं, and Anu from Mumbai will be reading for us. So yes, good morning, Anuradha. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Change as a choice instead of a reaction. It seems that human nature is such that we balk at changing until things get really bad and we are so uncomfortable that we can no longer go on with business as usual. This is as true for an individual as it is for a society. We wait for crisis, trauma, loss, disease, and tragedy before we get down to looking at who we are, what we are, how we are living, what we are feeling, and what we believe or know in order to embrace true change. Often it takes a worst case scenario for us to begin making changes that support our health, relationships, career, family, and future. My message is, why wait? We can learn and change in a state of pain and suffering, or we can evolve in a state of joy and inspiration. Most embrace the former. To go with the latter, we just have to make up our minds that change will probably entail a bit of discomfort, some inconvenience, a break from a predictable routine, and a period of not knowing. Most of us One second. So yes, very, very important learning here. हम बिल्कुल मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, हम तब उसकी वेट कर रहे होते हैं जब वो हो जाती है. फ्रॉम अ स्मॉल थिंग लाइक रिपेयरिंग एन अप्लायंस इन आवर हाउस, वी विल वेट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि वो बिल्कुल ही रुक जाएगा ना, तब जाके हम उसको जाके उसको रिपेयर कराएंगे, बदलवाएंगे. व्हाई वेट? people after breakup they realize that, oh, I need to make this change. अब मैं अपने आप पे फोकस करूंगी, बहुत हो गया, अब मैं अपने आप पे फोकस करूंगी. पहले ही अपने आप पे फोकस कर लो ना. तो यही डॉक्टर जो डिस्पेंजा यहाँ पे समझा रहे हैं. Why wait for the worst case scenario that one day will come, ये हो जाएगा ना, उसके बाद में ये करूंगी, ये हो जाएगा. वही ना, be, do and have होता है. have, do and be नहीं होता कभी भी. वो यूनिवर्स का रिवर्स फॉर्मेट है अगर अगर हम ऐसा सोच रहे हैं. सो टेक एक्शन टुडे. यू वांट टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, डू इट टुडे. डोंट से दैट मैं ना एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, फिर मैं ट्यूसडे को वापस आ रही हूँ, मैं वेंसडे से बस आई विल बी एट इट. Why can't you do it today? Suppose अगर आपने डिसाइड किया है, I am doing 15,000 steps every day now. I'm definitely doing it. I'm definitely eating right. Dinner अब से मैं 7 PM पे कर लूंगी. ठीक है? तो ऐसे नहीं. I will do it then. Tomorrow never comes. किसी बहुत वाइज पर्सन ने ये बोला है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चेंज करना हो, ठीक है, यू हैव टू डू दैट टुडे. टुडे इज द टाइम एंड नाउ इज द मोमेंट. दिस इज ऑल्सो अनदर कोट. So do it right now. Power is only in the now. Power is not in tomorrow. Power is not on Wednesday, the coming Wednesday. Power is today. Who we are right now will make a difference to the next moment and the next moment and the next moment. ठीक है? You don't have to wait that, मतलब blood pressure या sugar level उतना पहुंच जाए, now I will start doing it. No, do it from today. Do it. Don't wait that कोई बीमारी हो जाएगी फिर ये. अगर अपना मतलब this is related to health, it could be related to relationship, it could be that I will not react to this situation anymore. अगर आपने सोचा है that बार बार ही सिचुएशन आ रही है, अब मैं रिएक्ट करना बंद कर दूंगी. डू इट टुडे. ठीक है? इफ देयर इज एनी चेंज यू वांट टू मेक, या तो हम रेजिस्ट करते रहेंगे, नहीं जी मैं तो दुनिया की सबसे बिल्कुल सही इंसान हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता. ठीक है? फिर देन यू वेट बिकॉज वो पैटर्न रिपीट होगा, फिर से वो रिपीट होगा. Change yourself today. There is something you need to understand that you need to stop doing. Okay? Introspect, stop doing it from today. Okay? Stop doing it from today.
आदत है पीछे से किसी के बारे में बुरा बात करने की, जिसके कारण यू लैंडिंग अप इन ट्रबल। ओके, ये भी होता है दैट बार बार लाइक फोन कर करके एक दूसरे को परेशान करना और अपनी वेंटिंग आउट बिजनेस करना। ठीक है, वेंटिंग आउट मीन्स योर गॉसिपिंग एंड बिचिंग। स्टॉप डूइंग इट टुडे बिकॉज इट इज हार्मिंग द अदर पर्सनस लाइफ। उसकी जिंदगी भी खराब कर रहे हो, है ना। जिसको फोन कर करके दुखड़ा सुना रहे हो, उसके मुंह से भी दो शब्द ऐसे निकल जाएंगे कि वो अभी बड़ी मुश्किल से 110 पे आई है और वो -60 पे पहुंच जाएगी, एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट पर्सन टू कम बैक अगेन टू 100। ठीक है, और अपना खुद का तो जो किया ही है वो किया है। तो आइडेंटिफाई पैटर्न्स वेयर यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहां पे हमको डिफरेंटली सोचना या करने की जरूरत है। ठीक है, सो अगर डाइट का ध्यान रखना है या अपने थॉट पैटर्न्स, इफ यू डिसाइड दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट थिंक like this, like I will only think progressive thoughts or I will meditate for 10 minutes. Don't wait कि मैं मंडे से ये करूंगी क्योंकि आज और कल मेरे घर में शादी है। वॉशरूम भी तो जा रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, शादी है फिर भी वो सब कर रहे हैं ना। 10 मिनट नहीं निकाल सकते जिस चीज पे आपकी पूरी दुनिया बेस्ड है। ठीक है, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, उसका टाइम नहीं निकल रहा है। सो इसीलिए देन टुमारो विल नेवर कम, बिकॉज सबकॉन्शियस को ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि इस पर्सन के पास समय की कमी रहती है और ये पर्सन आज का काम कल करता है। ठीक है, और ये लगातार होता रहता है। सो इसलिए बहुत जरूरी है हमको कि हम अभी सीख जाएं। आज है तो है, कल नहीं होने वाला। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज यहाँ पे। जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोल रहे हैं, क्यों वेट करना, क्राइसिस हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, लॉस हो जाए, डिजीज हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए, उसके बाद सोचो दिस इज व्हाट आई विल नाउ स्टार्ट थिंकिंग। प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ टुडे ओनली। आप ही ब्रह्मांड हो। ठीक है, तो वो सारी शक्तियां आपके अंदर है आज वो सब करने की। द यूनिवर्स लाइज विद इन अस, वी ऑल नो दैट, है ना। तो ब्रह्म शक्ति है हमारे अंदर, ब्रह्मांड की शक्ति जिसको बोलते हैं, ब्रह्म शक्ति है। तो हम उस शक्ति को यूज करके हम अपने चेंजेस जो भी हमको करने हैं, अपने गोल की तरफ ध्यान रखना, वो सब करना, दैट वी विल डू टुडे। सो इसलिए जो भी it says that often it takes a worst case scenario for us to begin making changes that support our health, relationships, career, family, future, everything. ठीक है, अगर इन सारे एरियाज में जो चेंज करने हैं, फ्यूचर में कुछ करना है, आपने सोचा है तो आज से एक्शन लेना शुरू कर दो उसकी तरफ। फैमिली में कोई चेंजेस करने हैं, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ में भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, यो वेटिंग बिल्कुल ही टाइम क्रैश हो जाए तब जाके टाइम मैनेजमेंट होगा। नो, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। नो, आइडेंटिफाई। तो इसी में लिखा हुआ है दैट दो सिचुएशंस होती है हमारी जिंदगी में। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कह रहे हैं, एक होता है स्टेट ऑफ पेन एंड सफरिंग, ठीक है, या फिर जॉय एंड इंस्पिरेशन। सो जो चेंजेस करने हैं वो खुशी के दौरान कर लो। सिचुएशन इतनी खराब मत होने दो कि जहां पे फिर आपको तब जाके ठीक है ये हो जाएगा फिर मैं चेंज करूंगी, ऐसा नहीं होता। सो इसीलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा कह रहे हैं, मोस्ट एम्ब्रेस द फॉर्मर। वो पेन एंड सफरिंग में अपने करते हो, अबे अब तो मैं आई विल डू दिस एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस एंड आई विल इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन एंड आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड आई विल वर्क टुवर्ड्स माय ओन करियर। मैं अपना कोर्स करूंगी, मैं अपना ये करूंगी, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी। नहीं, अपना करियर है ना, अपने करियर पे आज से ही ध्यान दो। अगर इधर उधर ध्यान जा रहा था, पीपल अराउंड एंड दिस अराउंड, ऑफ कोर्स फैमिलीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पीपल इन योर लाइफ आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बट देयर इज अ वे टू मैनेज। देयर आर सो मेनी पीपल जो 50 चीजें करके भी बहुत अच्छे से फैमिली मैनेज करते हैं। देयर आर पीपल जो कुछ नहीं करते फैमिली के अलावा। ठीक है, तो उनका कोई आउटसाइड वर्ल्ड नहीं है, कोई आउटसाइड सोशल सर्कल नहीं है। स्टार्ट बिल्डिंग दैट। ठीक है, स्टार्ट गेटिंग टाइम ऑफ फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है आप ओवर कंज्यूम हो रहे हो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, फैमिली को भी अच्छा लगता है, सारी मम्मियों को यहाँ पे लगता है कि बच्चे हमारे बिना मैनेज नहीं कर सकते और वो ओवरडू करते हैं बच्चों के लिए। इस तरह वो बच्चे बेचारे कभी ग्रो ही नहीं कर पाते क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, क्योंकि हमेशा उनके मम्मी पापा उनके लिए डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट गिव स्पेस टू देम। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ग्रो होने के लिए। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है व्हेन यू जस्ट गिव देम सम स्पेस। लेट देम डू थिंग्स, लेट देम मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, उनके लिए भी बहुत जरूरी होता है। So just okay to give them space and not dictating them all the time. Okay, so if the children are saying that
you go out and we don't want to come, let it be. Don't force them to come with you like that. Just give some space. Very, very important for them to have that kind of a space also sometimes. You know, so it is like that. Don't be on there, this thing, you know, sitting on the head. And some things they learn with experiences, and then those will become the beautiful moments for them also. So that is how it is. So it says that go with the latter, make up your mind that change will entail a bit of discomfort. कोई भी change अगर आप कर रहे हो ना, discomforting होता है, ठीक है, definitely. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, बट इट विल बी, इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, डिस्कम्फर्टिंग होगा, इनकन्वीनियंट होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ ब्रेक फ्रॉम अ प्रेडिक्टेबल रूटीन. आपका रूटीन ब्रेक हो रहा है. अगर आपने सोचा है कि मैं 1 घंटा जिम जाऊंगी, या मैं 1 घंटा वॉक करूंगी, या मैं रन करूंगी और मैं अपने आप को टाइम दूंगी, मैंने म्यूजिक करना छोड़ दिया था, मैं दोबारा करूंगी, मैंने पेंटिंग करनी छोड़ दी थी, मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ, मैं दोबारा अपनी पेंटिंग को टाइम दूंगी, मैं ये करूंगी, या जो भी चीज जो आपको बहुत पसंद थी करनी, ठीक है, वो सब आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपने 5 साल से ट्रैवल नहीं किया, ठीक है, आपने अकेले ट्रैवल नहीं किया या दुकेले नहीं किया, आई मीन यू वांट टू गो विद सम ऑफ योर फ्रेंड समवेयर, यू वांट दैट टाइम ऑफ द फैमिली, that's okay, just do it, you know, there's always a better thing to do, so try to do things. Yeah, हाँ जी, पढ़िए. Most of us are already familiar with the temporary discomfort of not knowing. We stumbled through our early efforts to read until this skill became second nature. When we first practiced the violin or the drums, our parents wished they could send us to a soundproof room. Pity the hapless patient who has his blood drawn by a medical student who has the requisite knowledge but still lacks the finesse that she will only gain through practice. Absorbing knowledge, knowing, and then gaining practical experience by applying what you learned until a particular skill became ingrained in you. Knowing how is probably how you acquired most of the abilities that now feel like a part of your being, knowingness. In much the same way, learning how to change your life involves knowledge and application of that knowledge. That is why this book is divided into 3 overarching sections. Throughout parts 1 and 2, I will build ideas in sequence, forming a bigger and broader model of understanding for you to personalize. If some ideas seem repetitive, they are there to remind you about something that I don't want you to forget. Repetition reinforces the circuits in your brain and forms more neural connections so that in your weakest hour, you don't talk yourself out of greatness. When you ease into part 3 of the book with a sound knowledge base, you can experience for yourself the truth of what you learned earlier. Yeah, thank you. I know we'll be reading only so much Thank you, today. ma'am. Thank you so much for always reading so beautifully. Thank you, ma'am. Yeah. So here, you know, like Dr. Joe Dispenza यही बता रहे हैं कि किसी भी अननोन जोन से, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वायलिन प्ले करने का, कि आपने ये सोचा आपको बहुत पसंद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, एंड यू रियली वांट टू लर्न वायलिन एंड यू नेवर डन इट इन योर लाइफ, बट नाउ यू आर ऑलरेडी क्वाइट ग्रोन अप और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत शुरू से मन था करने का. सो नाउ व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग वायलिन यू विल मेक मिस्टेक बिकॉज इट्स एन अननोन जोन, आपने कभी किया नहीं, आपको वो होल्ड करना भी नहीं आता ठीक से, ठीक है, लेकिन यू विल मेक मिस्टेक्स बट यू विल लर्न, एंड देन प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन. इसकी इंपॉर्टेंस बताइए लाइफ में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिस और रिपीटिशन के कारण इट विल बिकम अ जोन ऑफ नोइंग. सो बहुत सारे ऐसे अननोन जोन होते हैं, ओ मैं तो आज तक कभी गई नहीं, मैंने तो आज तक कभी
ऐसे टोटली वीजा अप्लाई करके ये अपने आप से मैंने तो कभी किया नहीं है, या मैंने ये चीज मैंने जिम आज तक किया नहीं है। वॉक तो मैं शुरू से करती हूँ लेकिन मैंने जिमिंग नहीं, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की है कभी भी, या मैं इस तरह से आई हैव नॉट dressed up differently, yeah, I have never worn a makeup in my life. There's so many girls or men might say that this is not my area of interest. I mean, like, a man might think that this is not my area of interest. I'm not good at this or I'm not good at that. उनको पता नहीं होता है कि उनमें इतने सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं। कई बार हम अपने आप को जिंदगी भर, हमारी अपनी खुद के साथ डिस्कवरी ये लाइफ लॉन्ग होती है। हम खुद अपने बारे में इतनी सारी चीजें करते रहते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारी मुझे तो नहीं पता था कि मैं ऐसे कम्युनिकेट करके आई विल बी स्टडिंग लाइक दिस वन डे। दिस वाज सच एन एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। आई नेवर थॉट दैट ऐसा कभी होगा। आई नेवर थॉट दैट ऑल 365 डेज इन अ ईयर मैं 4:30 बजे उठ के ये सब काम करूंगी और मेरी लाइफ में इस तरह का डिसिप्लिन आएगा कि बाय 9 आई विल बी इन बेड और व्हाटएवर, मोस्टली इन बेड बाय 9 o'clock। मैंने तो नहीं सोचा था कभी, ये तो मेरे लिए बहुत ही अननोन जोन था। एंड स्टडिंग डिफरेंट बुक्स एंड स्टडिंग डॉक्टर जो डिस्पेंजा's दिस बुक ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, मैं कभी नहीं सोचा था। मैं कुछ डॉक्टर जो डिस्पेंजा मुझे बहुत डिफिकल्ट राइटर लगते थे शुरू से। मतलब बहुत साइंटिफिक हैं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हैं तो बहुत साइंटिफिक है और लाइक न्यूरो साइंस को उस तरह से समझाते हैं। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, एक बार इनको पढ़ के तो देखते हैं ना। फिर उसके बाद जब मैंने इनकी 2 किताबें पढ़ी हैं पूरी, ठीक है, एक ये वाली और एक और पढ़ी हुई है, सो वो पढ़ी तो मुझे पता लगा कि ही मेक सो मच सेंस। एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट माई फील्ड। मेरा मेरा फील्ड भी तो यही है, मैं भी तो यही सब करती हूँ, मतलब न्यूरो साइंस मेरा फील्ड भी है। फिर मैंने इनकी बातें बातें जो जो भी इन्होंने किताब में समझाई थी, बिकॉज वो अननोन जोन से वो मेरे नोन जोन में आ गए। ठीक है, ये जो अननोन जोन का था, दैट वी ऑल स्टडिंग टुगेदर एंड गिविंग अ स्ट्रक्चर टू माय लाइफ, ये भी मेरा अननोन जोन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोज में 4:30, आई वाज ऑलवेज एन अर्ली राइजर। मैं कभी, मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे सनसेट के बाद में उठती नहीं कभी भी, चाहे मैं कभी भी सोई हूँ। सो बहुत कम ऐसा होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे सनसेट के बाद मतलब सनसेट के पहले उठ जाती हूँ, बट आई गो बैक टू स्लीप, सो सम डेज आर लाइक दैट। अगर मेरी फ्लाइट 2 बजे रात को लैंड किया है और मैं 3:30 4 बजे तक सोई हूँ, तो ये सेशन लेके मैं वापस से सो जाती हूँ 7:30 बजे, एंड देन आई वेक अप बाय 10 o'clock जस्ट टू तो इस तरह से होता है। सो मुझे नहीं पता था कि ऑल 365 डेज इस तरह से आई विल बी वेकिंग अप, एंड लाइक इट इज ऑलवेज लाइक दैट। सो विच इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो आप अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कवर करते हो जो आपको पता ही नहीं होता है कि आपके अंदर है। ठीक है, और उस तरह का इंसेन डिसिप्लिन, उस तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह से दैट आप इतनी कंपैशनेट हो जाते हो। मुझे तो नहीं पता था कि मैं इतनी कंपैशनेट हूँ कि मैं किसी के लिए रात में बैठ के 555 प्रैक्टिसेस किए जा रही हूँ। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे मेरा कोई वैसा रिलेशन रहा नहीं है, जिनसे मैं सिर्फ 15 दिन पहले मिली हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर उस तरह का प्यार और कंपैशन है ना। तो अपने आप को भी तो आप डिस्कवर करते जाते हो। सो देन एंड व्हेन आई टीच, मुझे नहीं पता था कि आई कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड राइटर। आई डिड नॉट नो, आई वाज नॉट राइटिंग। मुझे कोई एक तो पैराग्राफ भी नहीं लिखा जाता था, मतलब there was always this thing कि how will it look, and I cannot. now it is my passion। जैसे इन्होंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक दिया है वायलिन का, एक दिया है रीडिंग का। रीडिंग का अगर आपको शौक हो जाता है, हमको भी नहीं पता था वोरेशियस रीडर्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन आप डिस्कवर करते हो अपने आप को और आपको लगता है ओ माय गॉड, मतलब पिछले 1 साल में मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं। यहीं पे हम इतनी सारी पढ़ लेते हैं, है ना। 3 बुक्स तो हम सेकेंड वाली, हमारी मिनिमम 3 बुक्स चेंज होती हैं। तो साल में हमने 3 हैवी वेट किताबें पढ़ी हैं और उनको डिकोड किया, उनको समझाया, तो हमने पढ़ी है ना वो। हमने कभी भी 3 किताबें शायद जिंदगी में नहीं पढ़ी होंगी। फॉर पीपल हु डोंट लाइक रीडिंग, या जिनको नहीं पता था कि इस तरह से, हमको नहीं पता था कि हम 1 घंटा बैठ के वो सास बहू की सीरियल्स, मतलब कभी ऐसा दिन आएगा कि हमको टीवी से इंटरेस्ट उठ जाएगा। ठीक है, हम न्यूज भी नहीं देखेंगे। हमको पता था ऐसा, मैं भी, हमने बचपन से इतने सारे सोप ऑपराज देखे हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारे दे रहे। मैं सैंटा बाबरा देखती थी बहुत ज्यादा, लाइक अपने कॉलेज टाइम में। और फिर बहुत सारे ऐसे मैंने सोप्स देखे हैं, तो बट बहुत सारे देखे हैं। अब मेरे कमरे में टीवी नहीं है ही नहीं। मतलब हमने अपना टीवी निकलवा के, मतलब एक इट इज इन वन ऑफ माय सन्स रूम्स, एंड वो भी नहीं चलता है। सो नहीं पता था ना, ये अननोन जोन है हमारे लिए। हम कितना ज्यादा टीवी देखते थे ऑल आवर लाइफ, सो मेनी ऑफ अस। ठीक है, अब नहीं देखते, हमारे पास टाइम भी तो नहीं होता। हमको हमको टाइम होता है बट हमको वहां पे नहीं डालना टाइम। ठीक है, हमको बेटर थिंग्स में टाइम डालना है।
सो दिस इज हाउ लाइफ बिकम्स. हम अपने आप को डिस्कवर करते रहेंगे एंड ट्राइंग डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, you know, and that is the way to grow and evolve. और डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं जब अननोन जोन में आप स्टेप करते हो तो आपकी न्यूरल वायरिंग, न्यूरल पैटर्न्स न्यू बनते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत न्यूनेस एंड एक्साइटमेंट एंड जॉय क्रिएट होता है. तो ये हमेशा समझाते हैं अपने सारे इंटरव्यूज में भी, वीडियोज में भी, एंड दैट इज व्हाट. सो इसमें यही बता रहे हैं कि पार्ट 1 एंड 2 में मैं बार बार कुछ चीजें रिपीट करूंगा, तो आप ये मत सोचना कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज मैं आपको रीआइटरेट करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आई वॉन्ट टू रिमाइंड, पुट इट इन योर माइंड अगेन. रिमाइंड का मतलब होता है टू पुट इट इन द माइंड अगेन. तो मैं आपके दिमाग में दोबारा कुछ चीजें लाइक हैमर करना चाहता हूं, तो मैं बार बार उनको रिपीट करूंगा, सो दैट यू काइंड ऑफ रियली लर्न एंड रिमेंबर इट. बिकॉज एक्चुअली कभी भी एक बार में पढ़ने से नहीं होता. दिस इज द रीजन मैं अपने खुद के सेशन 2 बार सुनती हूँ. सो जो रीडर्स होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं ना, मुझे वो सुनने की जरूरत होती है. अपनी एक्सप्लेनेशन मुझे पता होती है, बट मतलब वो चैप्टर्स सुनती हूँ मैं दोबारा से. जो रीडर्स होते हैं उनके चैप्टर्स दोबारा सुनती हूँ हमेशा. And then I derive my own conclusions about something, understand the chapters better, understand the writer's heart better, like that. So कभी 2-3 बार सुनने की जरूरत पड़ती है हम सबको, है ना. एंड दैट्स वेरी नॉर्मल. एक बार में नहीं समझ आता. एंड दिस इज द रीजन हमने अपने जो वीडियोस हैं ये वाले सारे सेशंस में मैजिक एंड मिरेकल्स टेलीग्राम ग्रुप पे, ट्रेजर ग्रुप पे, हर जगह डालने शुरू कर दिए, ताकि लोगों को अगर बार बार सुनने की जरूरत पड़े तो वो आराम से अपने चैप्टर पे जाके सुन सकते हैं. बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. बिकॉज हर जगह तो किताब नहीं होती ना हमारे पास हार्ड कॉपी, लेकिन हम जा रहे हैं, वी आर सिटिंग इन अ बस, वी आर सिटिंग इन अ मेट्रो, वी आर फ्लाइंग, तो फिर एटलीस्ट आप सुन सकते हो उन सेशंस को. तो फालतू की चीजों में दिमाग डालने से अच्छा है कि कंस्ट्रक्टिव और अच्छी चीजें सुनी जाए और लर्न की जाए. एंड दैट बिकॉज दैट्स व्हाट इज मेकिंग अप अ लाइफ सो ब्यूटिफुल. ओके, so that's all we have for today.